Good morning, everybody. Uh, I know it is Saturday, and thank you for joining. And it is my pleasure to welcome Dr. Subodh Kumar. Uh, Subodhji is a really respected leader in the field of disability empowerment. He's got 33 years of experience. I'm reasonably sure that some of the folks on this call weren't born when he started working in this space. So there is a wealth of experience. He has spent 25 years, serving the Rehabilitation Council, and he was the member secretary there. Subodhji has shaped policies. He shaped training programs, systems that impact, uh, I think, millions of persons with disability in the country, right? So I always believe there are silent heroes that do some incredible work, and Subodhji is one of them. Right. Apart from that, he's a master's in psychology. He's a doctor, and he's represented India on global platforms. He visited University of Melbourne, got an MOU there. He presented research papers internationally. He's done work on inclusive development programs and the ECRR portal, right, for rehabilitation of professionals. And I think I had the pleasure of having a conversation with him earlier, and my personal belief is that there are very few people who uh, who feel for persons with disability. I think Subodhji is one of them. So Subodhji, I don't think I've done justice to your resume. Uh, but I just hope that you will tell us more about what you've done. And thank you for taking out time. It is my absolute pleasure to welcome you to the Marching Sheep's podcast for persons with disabilities. Marching Sheep, as has been doing work in the space of diversity and inclusion for a long period of time. And 21 Marching is our initiative to make sure that all 21 disabilities, you know, uh, get uh, get accessibility and get opportunities that they deserve. Right. So that's with that. Welcome to this podcast. Namaskar. Thank you very much, Alok ji. In fact, it is a pleasure for me meeting all of you, especially you and Rakhi madam and all the audience right now connected with us for this podcast. मैं ये कहना चाहूँगा जो अभी जैसे कि आपने कहा 25 ईयर्स मैं थोड़ा ये अपडेट करना चाहूँगा ये शुरुआत हमारे कैरियर की 1998 में हुई जब मैं एनआईएमएस कोलकाता से जब ये प्रोफेसर डिप्लोमा कोर्स कर रहा था और उस समय कोर्स करने के बाद दिल्ली में एक एयरफोर्स ऑर्गेनाइजेशन में हमने 8 सालों तक काम किया 1998 तक। लेकिन उस समय 1988 में इस प्रकार की कोई रेगुलेटरी बॉडीज या कोई एक्ट का प्रावधान नहीं था और हम सभी काम करते थे, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर हुआ करती थी उस समय और जो ये उनके रीजनल सेंटर्स होते थे, उनके नेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, वो डिजेबिलिटी सेक्टर में काम करती थी। और इनके बाद जब हमने ये काम शुरू किया उस समय न कोई मैंडेट नहीं था, लेकिन जो डिजेबिलिटी एक्टिविस्ट थे, जो सोशल वर्कर थे, एनजीओ जो इस डिजेबिलिटी सेक्टर में काम करते थे, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा इस फील्ड को, इस सेक्टर को, उनके ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में। और जब 1992 में आरसी एक्ट का जब इनेक्टमेंट हुआ, जब पास बाय द पार्लियामेंट, उसके बाद ये प्रोफेशनल्स के लिए, डिजेबिलिटी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए एक वरदान साबित हुआ और एक ऐसी प्लेटफॉर्म मुहैया कराई गई भारत सरकार के द्वारा जिससे हम सभी रिहैब प्रोफेशनल्स, पर्सनल, सोशल वर्कर, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पर आए और एक अम्ब्रेला मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और उसी समय ये शुरुआत हुई इस रेगुलेटरी बॉडीज के फंक्शन की। जो इनका इंपॉर्टेंट मैंडेट जो था वो इंपॉर्टेंट मैंडेट है ट्रेनिंग कोर्स को डेवलप करना, जो उस समय 16 कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल्स जो डिजेबिलिटी के सेक्टर में काम करते हैं, जिनका इन्वॉल्वमेंट है, कंट्रीब्यूशन है, राइट फ्रॉम स्पेशल एजुकेशन टीचर, जो एक बहुत बड़ा एक मेजर
स्टेक होल्डर्स हैं इस फील्ड में काम करने के लिए, चाहे मॉडोलॉजिस्ट की बात करें, रिहैब साइकोलॉजिस्ट की बात करें, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करें, प्रोस्थेटिक ऑर्थेटिक्स की बात करें, ये सारे के सारे, या काउंसलर की बात करें, ये जितने कैटेगरीज या प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए सरकार ने आरसीए की मैंडेट के हिसाब से हम लोगों ने कोर्स करिकुलम डेवलप किया, उनको इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से स्टैंडर्डाइज किया, और उसके बाद धीरे धीरे इसको ट्रेनिंग कॉलेज को मान्यता में, मीन्स उसको परमिशन दी जो आप इस कोर्स को चलाओ। अल्टीमेटली ये एम ये था, जो क्वालिटी ट्रेनिंग कॉलेज की क्वालिटी कैसे इंश्योर की जाए, और ये मॉनिटरिंग का एक हिस्सा रहा। और ये भी इंश्योर की जाती थी जब आप सेक्शन 19 ऑफ द आरसी एक्ट के तहत प्रोफेशनल्स के पास में लाइसेंसिंग का होना, रजिस्ट्रेशन का होना आरसी के साथ जरूरी है, और एक मैंडेटरी चीज लाई गई। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब 1992 में जो एक्ट का प्रावधान हुआ, उसके पहले बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थी, फिलॉन्थेरेपिक ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो इस फील्ड में, इस सेक्टर में काम करती थी। उनके पास कोई भी किसी प्रकार के प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था, लेकिन वो बाय वर्चू ऑफ अपने एक्सपीरियंस फील्ड में शॉर्ट टर्म प्रोग्राम करके काम कर रहे थे। और इसके लिए आरसीए ने 1998 में उनके बारे में भी सोचा, क्योंकि एक्ट इनेक्टमेंट के बाद अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो ये एक ऑफेंस कहलाता है। इस कारण से आरसीए हैज स्टार्टेड डेवलपिंग द ब्रिज कोर्स प्रोग्राम, और इट वाज लॉन्च इन 1998। 2 साल तक चला, और ये 1 महीने का प्रोग्राम था। ये उनके लिए था जो प्रोफेशनल्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस सेक्टर में, उनको एक लीगल लाइसेंस दी जाए इस प्रकार के शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम को करने के बाद। और ये गवर्नमेंट का मैंडेट था। ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, और इसके बाद से धीरे धीरे, मुझे याद है जब 1998 में हमने आरसीए ज्वाइन किया, उसमें फ्यू मीन्स 200-250 ऑर्गेनाइजेशन के आसपास थे। अभी तो 1000+ ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, और ये पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। और उस समय की मैंडेट में अभी के मैंडेट में फर्क कुछ भी नहीं है, लेकिन अवेयरनेस और ग्रोथ लेवल बहुत ज्यादा बड़ा है। हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो सीआरआर की स्ट्रेंथ है, जो रजिस्टर्ड प्रोफेशनल पर्सन है, वो 1.5 लाख के आसपास हैं, जो पूरे देश भर में इसमें काम कर रहे हैं। ये एक मैं कहना चाहूंगा, ये शुरुआती। और जब आरसी हमने ज्वाइन किया, डिफरेंट लेवल, हमारा एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया, आई एलिवेटेड टू द पोस्ट ऑफ द डेप्टी डायरेक्टर। हमें ये मौका मिला गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस में भी काम करने का, ऑन डेप्यूटेशन एज ए डायरेक्टर। हमने भी वहां पर इस पॉलिसी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया। डेप्यूटेशन आने के बाद जब मुझे मौका मिला फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी का काम करने के लिए, एक मौका मिला, और हमारी जो चेयरपर्सन थे उनके सुपरविजन में हमने काउंसिल के जो डिसीजंस थे उसको एज एन एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द काउंसिल हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। और मोर ओवर ये पर्पस था, जो काउंसिल की मैंडेट थी, जो पॉलिसीज थी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कोर्स करिकुलम, रेगुलेशन ऑफ द ट्रेनिंग कॉलेजेस, उनको देश भर में, और मेंटेनेंस ऑफ द सीआरआर, साथ में रिसर्च स्कीम को प्रमोट करना, ये सारे मैंडेट को हमने किया। अल्टीमेट एम क्या था, जो क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करना, हमारे रिहैब प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को, ट्रेकर को, जो फुली ट्रेंड होने के बाद, फुली कॉम्पिटेंट होने के बाद इस फील्ड में आकर के इस डिजेबल्ड बच्चों के साथ, पीडब्ल्यूडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के साथ में काम करें, उन्हें फुली एम्पावर करें, ट्रेन करें। उनकी स्किल ट्रेनिंग के बारे में ये चीजें कही गई है, और ये कोशिश रही है जो उनके, जो हमारे रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स थे, उनको टाइम टू टाइम 5 साल के अंदर में उनको, उनके साथ एक प्रावधान रहा, जो आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप अपने लाइसेंस को, रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करना भी एक मैंडेटरी क्लॉज कर दी गई है, जिसके अंदर में उन्हें 5 साल के अंदर ये उन्हें डिफरेंट 100 सीआरई पॉइंट्स करने होते हैं। और ये बेसिकली शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, और इसका मकसद होता है जो हमारे फील्ड में क्या क्या हो रहा है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, अपने आप को हम अपडेट करना, अपडेटिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन नॉलेज, ये एक ऑब्जेक्टिव रहा। और ये काम बहुत ही अच्छी तरीके से किया जा रहा है। हमने अपने टर्म में, मुझे मौका मिला, मैंने कहा ये कोविड का समय था, मौका मिला, लेकिन फिर भी हमने इस फील्ड में आने के बाद हमने ई गवर्नेंस को प्रमोट किया, पॉलिसी डिजाइन की, ई ऑफिस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइल्स को हमने प्रमोट किया। और खासकर जो एक बड़ा एक इश्यू आ रहा था उस समय, जो हमने विजुलाइज किया, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाते थे वो फिजिकल जारी किए जाते थे, उनको हम लोगों ने
ई फॉर्म में किया, जिससे कि वो ऑनलाइन करे, डाउनलोड करे, ना उन्हें खोने का डर है, ना मिसप्लेस होने का डर है, और किसी प्रकार की इशू होने का डर नहीं है। ये आज तक बड़ी सक्सेसफुल रहा। मुझे अब जैसे कि अब 1990, जब इसमें मैं छोटा सा एक कहना चाहूँगा, जो मैं ये बता रहा था हिस्ट्री, जब ये मैंने ज्वाइन किया इस फील्ड में, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर हुआ करती थी। बाद में 2012 में डिपार्टमेंट ऑफ डिजेबिलिटी अफेयर के रूप में इसको नाम दिया गया, और 2014 में इसको रीनेम कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिजेबिलिटी में। लेकिन 1998 में ये जो हमारी मंत्रालय हुआ करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, इनको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के नाम से जाना गया। ये सारी है, मतलब छोटी सी मैं एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। साथ में एक आरपीडी एक्ट के इम्प्लीमेंट होने के बाद, आरपीडी एक्ट 2016 के इम्प्लीमेंट होने के बाद ये सबके लिए मैंडेटरी हो गया, क्योंकि आरसीआई भी एक रेगुलेटरी बॉडी है। हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना हमारा मैंडेट है, और आरपीडी एक्ट में ये भी मैंडेट है, एक क्लॉज है, जो डिजेबल बच्चों को, पर्सन विद डिजेबिलिटीज को एक ट्रेन प्रोफेशनल्स ही उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो हमने अलाइनमेंट की बात कही। आरपीडी एक्ट इंश्योर करता था, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कही गई, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट की बात कही गई, वर्क प्लेस पर इंक्लूसिवनेस की बात की गई। इन सब क्लॉज को देखते हुए हम लोगों ने एक मीटिंग किया, एक्सपर्ट्स कमिटीज को बुलाई, और हमारे जो कोर्स करिकुलम थे, जो टीचिंग में जो कोर्स करिकुलम थे बाकी एरिया के, उनको भी आरपीडी एक्ट के हिसाब से, उनके इंक्लूजन के हिसाब से हमने अलाइन करने की कोशिश की, अलाइन किया, कन्वर्जेंस ऑफ कोर्सेज की, 2-3 स्पेशलाइजेशन को मिला करके हमने उसमें ये कन्वर्ज किया, और एक कोशिश की जो एक रिहा प्रोफेशनल जो है 2-3 कैटेगरी के डिजेबिलिटी के बच्चों के साथ में काम कर सके और फुली ट्रेन हो सके। इसमें ये हमारा रहा, और मैं कोशिश करता रहा, और उसके बाद ये सब चीज चलता रहा। लेकिन इसमें एक हमने ये अपने समय में ये कोशिश की, जो आरपीडी एक्ट के लाइन के साथ साथ लिंकेजेस, जो इंडस्ट्री के साथ भी हमारे कोर्सेज का लिंकेज किया जाए। जब हम इसको रिविजिट करते हैं, रिवाइज करते हैं कोर्स करिकुलम को 5 इयर्स में, तो हमारी कोशिश रहती है जो नए डेवलपमेंट हैं, और खासकर जब पास आउट होने के बाद बच्चे क्या करेंगे, उनका जॉब सिक्योरिटी की बात कही गई, जिससे कैरियर, जॉब सिक्योरिटी नहीं, कैरियर के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। उसमें हमने एक इंडस्ट्री लिंकेजेस को भी हम लोगों ने प्रमोट किया। और खासकर मैं बता रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हमने किया कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने, ये बहुत जरूरी था। जब उस समय एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम हमें दिया गया था, इन सर्विस ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कही गई थी गवर्नमेंट फंक्शनरीज के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हो या वैसे लोग जो इस सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए हम लोगों ने छोटे छोटे ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए। हालांकि ये फंडेड प्रोग्राम था गवर्नमेंट का, और ये मॉडल्स बहुत अच्छे मॉडल्स हैं, चाहे ग्रास रूट लेवल के वर्कर के लिए हो, आशा वर्कर के लिए हो, आंगनवाड़ी वर्कर के लिए हो, या गवर्नमेंट फंक्शनरीज के हो, टीचर्स के लिए हो, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए हो, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के फैकल्टी को, एफडीपी के साथ इसको हम लोगों ने अलाइनमेंट किया, और ये प्रोग्राम काफ़ी बेहतर चला। करीब 20,000 बेनिफिशरीज थे उसमें। लेकिन अभी भी ये प्रोग्राम, अगर मैं ये कहूँगा दर्शकों को, अगर ये चाहते हैं आप अपने को थोड़ा ओरिएंट करने का, अपने आप के कैपेसिटी के बारे में, बहुत ही बारीकी चीज़ें, बहुत ही आसान शब्दों में, लेमैन की भाषा में, एक पिक्टोरियल ग्राफ के द्वारा इस प्रकार के मॉड्यूल हमारे आरसीए की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये हमारी जर्नी रही आरसीए में। सर, मैं 25 साल आरसीए में काम किया, और 8 साल, तो 33 साल का हमारे पास में रहा। इसके बाद में एक मौका मिला मुझे काम करने का रिटायरमेंट के बाद, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ में। वहाँ पर भी पॉलिसी प्लानिंग के बारे में काम करता रहा, और खासकर हमने इंक्लूजन को वहाँ प्रमोट किया, और वहाँ के एफडीपी प्रोग्राम में कैपेसिटी बिल्डिंग को हमने प्रमोट किया, जो कैसे डिफरेंट डिजेबिलिटीज को, आरपीडी एक्ट के मैंडेट को कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसलिए उस पर भी काफ़ी काम किया। इट्स ऑल अबाउट माई ब्रीफ अबाउट माई कैरियर, जो हमने किया, आपके साथ शेयर किया। थैंक यू आलोक जी। नहीं, वेरी नाइस सुबोध जी। आई थिंक बहुत ही महत्वपूर्ण काम, जो एक एक इम्पैक्ट वाला काम होता है, उसके बारे में आपने बताया। पर मैं ना अभी हमारी जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की जो कम्युनिटी है, मैं उनकी तरफ से कुछ सवाल पूछूंगा सर,
कि हाँ बताइए। मैं एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट या बाकी जो नोटिफिकेशंस हैं, उनमें से ऐसी कौन सी 5-6 चीजें हैं जो मेरे को पता होनी चाहिए? सर, जब एज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, देखिए आरपीडी एक्ट तो क्या है, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। आरपीडी एक्ट के पहले हमारे पास में पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 था, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की बात करते थे और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करते थे। ये भी एक एक्ट था। इस एक्ट के प्रावधान में भी उसे लीगली और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उनके पास दी गई थी, और ये राइट के हिसाब से जो है, जो इसको इम्प्लीमेंट करने का काम भारत सरकार के द्वारा ही किया गया। लेकिन जब यूएनसीआरपीडी 2007 ये कन्वेंशन पास किया गया, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिसमें इंडिया भी एक सिग्नेटरी था, और मैं बताऊं भारत सरकार ने सबसे प्रोएक्टिव मेजर लिया इसमें, और उसके बाद अपने एग्जिस्टिंग एक्ट पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को रिविजिट किया, और ये पाया गया जो यूएनसीआरपीडी के जितने क्लॉज थे, उन सब क्लॉज को कैसे कैसे इसमें हम इसको इनकॉर्पोरेट करें, और पूरी की पूरी ये सरकार ने काफी मेहनत किया, और उसके बाद एक आरपीडी एक्ट 2016 को उन्होंने पार्लियामेंट से फिर से उसको पास करवाया, जो भी पूरे देश भर में इम्प्लीमेंटेड है। और साथ में मैं ये जो बताना चाहूंगा, सारे ये इसके तहत जो कमिश्नर चीफ डिसेबिलिटीज, कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद चीफ डिसेबिलिटी पर्सन्स विद चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनको ये मैंडेट दी गई, आप पूरे राज्य में, पूरे देश भर में राज्य सरकार के साथ में उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके इस प्रकार के एक्ट वहां पास कराएं, और वहां पर इसके जितने भी जो बायलॉज हैं, इनके लिए जो राइट्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की बात कही। आपने कहा जो इसमें से कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट बात की है, देखिए सबसे पहले इसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात कही गई है। मीन्स 40% से कम डिसेबिलिटी होना जरूरी है। ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है, बेसिकली कह रहे हैं एक क्लासीफाई किया गया आखिर किन्हें हम लीगल राइट्स के लिए और आरपीडी एक्ट में किन्हें इंपावर किया जाएगा, किनको ये, तो ये एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात की गई है। उसके बाद दूसरी बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात कही है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात कही है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही, इंक्लूसिव सोसाइटी की बात कही गई है। ये सब जो है बेसिकली इनको जॉब रिजर्वेशन की बात कही, इन्हांसमेंट की गई, 3 से 4% की गई। एडमिशंस इन द हायर एजुकेशन में इनकी एडमिशंस को रिजर्वेशन, एडमिशन पॉलिसी को रिवाइज करने की बात की गई है। और मैं आपको एक बता दूं, जो ये जो हमने महसूस किया, जो इस फील्ड में हम कई सालों से काम करते आ रहे हैं, जो वो उसमें पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के पहले और उसके बाद 2016 के पहले भी जो हमने देखा, जो स्कूलों में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं, उनके एडमिशन एनरोलमेंट में बहुत प्रॉब्लम हुआ करते थे। हालांकि आरपीडी एक्ट के बाद तो अब तो काफी चीज आसान हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट के मैंडेट्स हो गए हैं। लेकिन साथ में कभी भी अभी भी कुछ सरकार, कुछ राज्य सरकार या कुछ ऐसे, मैं ये नहीं कहूंगा कुछ स्कूल उदासीन है। इसी कारण से आरपीडी एक्ट के तहत कुछ जो है अभी भी कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा है, और इस कारण से डायरेक्शन दी गई है राज्य सरकारों को, जो आप स्पेशल, आपने जनरल इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करें, और अपने मेन स्ट्रीमिंग स्कूल में स्पेशल टीचर्स की, इंक्लूसिव टीचर्स की अपॉइंटमेंट करें। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और अल्टीमेट ये जो है, ये हमारे बच्चों के लिए ये है। अब हमने कहा जो उनके लिए एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की बात कही है, ये एजुकेशन के रिजर्वेशन को इम्पैक्ट किया गया, इनको बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया। साथ में ये भी देखा गया जो इनकी कंप्लायंस होती कि नहीं, अगर किसी प्रकार के इश्यूज होते हैं, कंप्लायंस नहीं होते हैं, तो अभी तो इंपावर की गई है स्टेट कमिश्नर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। आप उनको ये टूल है, अब वो कितना इसको एक्सरसाइज करते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बात तो है, अभी भी कहीं ना कहीं हमने जो अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे स्टेट्स में फुल टाइम पर्सन विद स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी की नियुक्ति की अभी आवश्यकता है, एडिशनल चार्ज में काम हो रहा है। ये कहीं ना कहीं हमें इसके लिए, अगर हम पीडब्ल्यूडी के राइट को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें हम इंक्लूसिव एजुकेशन मुहैया करवाना चाहते हैं, इक्विटेबल इनोवेशन मुहैया करवाना चाहते हैं, हम यूडीएल मोड से उनको मतलब कि इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों में हमें ये होना चाहिए, हमें ये सोचना है राज्य सरकार इसमें उसमें सहयोग करे। इसके अलावा अब एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने ये कहा, इसमें आरपीडी एक्ट इनैक्टमेंट के बाद में देखिए, ये
सरकार जो है जॉब रिजर्वेशन 4 to 5% की है। सीसीपीडी ऑफिस के पास में ऐसे प्रकार क्लासिफाइड जॉब्स हैं किस प्रकार के डिजेबिलिटी के लिए, चूंकि अब तो आरपीडी एक्ट में 21 डिजेबिलिटी को कवर की गई है जो कि पहले 7 थे, तो किस प्रकार के डिजेबिलिटी के लिए कौन कौन से जॉब अप्रोप्रिएट होते हैं और उनकी स्किल ट्रेनिंग कॉम्पिटेंसी को कैसे डेवलप किया जाए उसके बारे में पूरी उनके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये भी कोई भी चाहे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे, कोई स्पेशल स्कूल चाहे या कोई भी जो स्टेक होल्डर्स चाहे, ये डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है वहाँ सीसीपीडी ऑफिस से या अपने स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस से, जो कमिश्नरेट हैं उन ऑफिस से ये ले सकते हैं। ये तो उनके एम्प्लॉयमेंट की बात कही गई। इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात, दूसरा एक बहुत बड़ा मैंडेट था बैरियर फ्री एक्सेसिबिलिटी की बात की गई है। जो ये बैरियर फ्री एक्सेसिबल इस कारण से इस एक बैरियर फ्री एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम को इंप्लीमेंट लिया और ये एज ए फ्लैगशिप स्कीम प्रोग्राम के तहत चलाया जा रहा है, जिसमें भारतवर्ष में जितने भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के बिल्डिंग्स हैं उनको एक्सेसिबल कैसे बनाया जाए, एक्सेसिबिलिटी को कैसे इंश्योर किया जाए, रैम्प कैसे किया जाए, रैम्प कैसे बनाई जाए, एक्सेसिबल वॉशरूम हो, क्लासरूम हो, लिफ्ट हो, स्टेयर्स केस हो, रैम्प हो, इन सब के बारे में नॉट ओनली वेबसाइट तक के लिए के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी इस पर काफी पैसा खर्च किया और राज्य सरकार को इस प्रकार की बिल्डिंग को एक्सेसिबल बनाने के लिए भी गवर्नमेंट अपने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के तहत काफी प्रमोट करती है, फाइनेंशियली सपोर्ट करती रही है। ये चीज उन्हें एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा। जी सर। सर सुबोध जी, कुछ कुछ ये हमारे पॉडकास्ट ना एचआर के लोग भी देखते हैं, तो अगर मैं ये फ्लिप करूं कि अभी आपने बताया कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज क्या के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो अगर मैं एक एचआर कंपनी के एचआर में हूं, तो मेरे को ऐसे कौन से जो प्रोविजंस हैं जो मुझे पता होने चाहिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत? सी एचआर की बात कहें तो मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है। नंबर 1, माइंडसेट को चेंज करने की आवश्यकता है। जो हमें ये देखना है, जो हमारे वो पहले पर्सन्स हैं, बाद में डिसेबिलिटी की बात आती है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर पर्सन्स। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात बाद में आती है। हमें अपने स्ट्रेंथ को देखना है, उनके स्ट्रेंथ को देखना है। उनमें ये नहीं देखना है कि उनकी वीकनेसेस क्या है। वीकनेसेस हम सभी में है और वीकनेसेस को कैसे ओवरकम करने की भी हम प्रयास कर सकते हैं अगर हम स्ट्रेंथ को प्रमोट करें, उनको आइडेंटिफाई करें। जैसे कि मैंने अभी कहा ना आपसे, जो किस प्रकार के जॉब स्किल की आवश्यकता होती है, किस प्रकार के पर्सन, अगर हम कहें लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात करें या विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करें या लो विजन की बात करें या ब्लाइंडनेस की बात करें या हम बच्चों आईडी की बात करें या हम एक एसएलडी की बात करें, स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी की बात करें, जितने भी क्लासिफिकेशन जो आरपीडी एक्ट में है, जो बच्चे हैं, इन सब में जो है, इन सब के लिए क्लासिफिकेशन की गई है, जॉब भी आइडेंटिफाई किया गया। आजकल क्या ये जॉब केवल एक बी और सी ग्रुप तक की नहीं है। मैं ये बताना चाहूंगा, ये जॉब ग्रुप ए सर्विस तक के लिए है, जो हायर एजुकेशन में है। मैं खुद बताना चाहूंगा जो मतलब कि ये कैसे, जब मेरे पीएचडी सुपरवाइजर रहे हैं, ही इज ए ब्लाइंड पर्सन, वो, और मैं ये सोचता हूँ जो उनके साथ जो उनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो पावर है वो शायद हमारे पास भी नहीं है। और ये सब चीजें जो हैं, तो उनके स्ट्रेंथ को देखने की बात कही। दूसरी बात, वर्क प्लेस को कैसे इंक्लूसिव बनाया जाए, इन्वायरमेंट को कैसे पॉजिटिव सेंस में किया जाए। हमें ये पता है, हम किसी को लेकर के आते हैं, किसी का नया रिक्रूटमेंट है, और जैट द मोमेंट हमारे अमॉन्ग्स स्टाफ मेंबर इनको ये पता चलता है ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, तो उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं हमें इनको एक बैरियर की तरह काम करता है, एक रेसिस्टेंस शो करता है। तो रेसिस्टेंस को कैसे ओवरकम किया जाए, इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता होगी। अपने स्टाफ मेंबर को हमें उनके बारे में एक ओरिएंट करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली जब ओरिएंट करेंगे तो उनका एक वेलकम होगा। और ये चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा, जो आप उनके स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किस वर्क के लिए आप कॉमनैलिटी ले रहे हैं, किसी अगर आइडिया, अगर मैं एग्जांपल साइड करना चाहूंगा, हमारे आरसी ऑफिस में हमारे पास जो एक
रिसेप्शनिस्ट है, ही इज ए ब्लाइंड पर्सन, ये कहा गया जो ही इज ए रेगुलर सर्विस में है, ये कहा गया वो काम कैसे करेंगे। और जब ये अपॉइंटमेंट की गई, उनकी नियुक्ति की गई, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा वो जो कुछ दिनों में अपने कामों में बिल्कुल वो ट्रेंड हो गया, क्योंकि जो रिसेप्शन का रोल होता है रिसेप्शनिस्ट का, उस काम में वो काफी अच्छी तरीके से अपनी वो भूमिका निभाता रहा। इसी प्रकार हम ये कहेंगे जो हमारे जो एजेंसी हैं जो इस प्रकार के बच्चों के लिए काम कर रही है, उनके एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, तो उनके स्ट्रेंथ को पहचाने, जॉब डिफाइन करें उनके लिए, उनकी जॉब डिफाइन करें, और कभी कभी उनको लगे तो आप उनके साथ में कभी कंसल्टेंसी एज ए मार्जिन शिप कंपनी आप काम कर रहे हैं, उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें, एक एक्सपर्ट्स को बुला करके आप उनके साथ में अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। ये और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो अब वो मिथ का जमाना नहीं रहा, जो हम ये सोचते हैं ऐसा नहीं है, वो नहीं है, हमसे ज्यादा बेहतर हैं। और खासकर मैं बता रहा हूँ, जब आपने कहा एक्सपीरियंस की बात है, आईडी बच्चों को अभी भी आईडी पर्सन को आईडी बच्चों के साथ में काम करने का जो आनंद है, मैं एक बताना चाहूंगा, एक लाइव एग्जांपल, एक केरला की ऑर्गेनाइजेशंस है जो डिलिवरी सेक्टर में काम करती है, बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उनके पास जो आईडी के जो बच्चे होते हैं और अडल्ट जो होते हैं, उनको वो हॉर्टिकल्चर में और एग्रोनॉमी में उसमें वो काम करवाते हैं, उनमें ट्रेनिंग देते हैं और सुपरवाइज तरीके से काम करते हैं, उनसे उनको बहुत फाइनेंशियली बेनिफिट होता है। मैं किसी को साइट नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन चूंकि वो आईडी बच्चे हैं, उनमें ये फीलिंग जो स्टीरियोटाइप काम करने में बहुत ही माहिर होते हैं। अगर हम डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग की बात करें, एक ऐसे इन्वायरमेंट में बात करें, आप हॉस्पिटलिटी की इंडस्ट्री की बात करें, और आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे जो होटल्स हैं जहां पे इस प्रकार के बच्चों को, इस प्रकार के ट्रेंड मींस पीडब्ल्यूडीज को प्रमोट किया जाता है और उनकी आउटपुट बेहतर होती है, हमसे बेहतर होती है, तो हम ये कहना चाहेंगे। अंडरस्टूड। सुबोध जी, आप जितने सवाल अभी आ रहे हैं चैट बॉक्स में, इतने सवाल मैंने पहले देखे नहीं है, तो मेरे को लग रहा है कि मैं अपने सवाल थोड़े कट शॉर्ट कर देता हूँ, एंड वी कैन कम बैक टू इट। प्लीज। बट है ना, तो आई थिंक सबसे पहले एक चंदन ने सवाल पूछा था। चंदन ने बोला था कि चंदन, आप अपना सवाल पूछेंगे, वुड यू लाइक टू आस्क योर क्वेश्चन। एक रिक्वेस्ट है सबसे कि आप अपना सवाल एकदम ब्रीफ में बोले, क्योंकि सुबोध जी के साथ टाइम हमारा लिमिटेड है और मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल लेना चाहता हूँ। तो चंदन, आर यू देयर? यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग चंदन जी। सर मेरा जो अभी हम लोग, मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हूँ, एंड अभी बोकारो स्टील प्लांट में हमने ग्रीवांस मैनेजमेंट स्टार्ट किया है, स्पेशली फॉर पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉइज। तो आर देयर स्पेसिफिक गवर्नमेंट गाइडलाइंस रिगार्डिंग दिस, कि ये जो कमिटी बनेगी कैसे बनेगी, ये कमिटी हैंडल कैसे करेगी ग्रीवांसेस? डीओपीटी का कोई गाइडलाइंस या फिर पीडब्ल्यूडी एक्ट में कोई गाइडलाइन ऐसा है क्या ग्रीवांस मैनेजमेंट को लेके एट वर्क प्लेस? मैनेजमेंट के जो आरपीटी एक्ट की जो रेगुलेशंस है, रूल्स आए हैं, उसमें इस प्रकार के प्रोविजंस हैं। मैं ये कहूंगा जो आरपीटी एक्ट जो 2016 है, उसमें इस प्रकार के क्लॉज हैं, और ग्रीवांस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे रिड्रेस किया जाए, इसके लिए रूल्स 2000 जो रूल्स बने हैं और आरपीटी एक्ट के तहत में, उनकी एक कॉपी आप डाउनलोड कर लेंगे हमारे मिनिस्ट्री की वेबसाइट से, तो आपकी सारी क्वेरीज को वो रिजॉल्व करेगा सर। आई सी दैट सर उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का बुकलेट भी है, जो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी 24 या 23 में, उन्होंने पूरा एक बुकलेट बना के दिया था। बट देयर आर सम, ओके सर, लेट मी फर्स्ट कोरिलेट दिस एंड देन maybe I will get in touch with you sometime. जी सर एक और सवाल था, ये जो यूडीआईडी का गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया था, इट वेरी नाइस इनिशिएटिव कि उन्होंने स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की है सारे जो डिफरेंट सर्टिफिकेट्स थे हमारे, बट स्टिल द एक्सेप्टेबिलिटी इज वेरी लो। अभी भी वो बोर्ड का सर्टिफिकेट खोजते हैं, साइंड बाय 5 डॉक्टर्स वाला जो सर्टिफिकेट होता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वही खोजते हैं। सो द रोड मैप फॉर यूडीआईडी इज स्टिल नॉट क्लियर। एनी थॉट्स ऑन दिस? सर यूडीआईडी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, जो गवर्नमेंट की ये इनिशिएटिव रही है, जब ये गवर्नमेंट ने यूडीआईडी कार्ड का जो कंसेप्ट रखा, उनका ये पर्पस था जो हम वन कार्ड वन नेशन को करें।
ये इशू जैसे कि आपने खुद ही कहा, जो पहले पेपर वर्क होता था, पेपर सर्टिफिकेशन होते थे, वो पूरे देश भर में इसकी इंफॉर्मेटिव नहीं होती थी सर। तो उस कारण से डिपार्टमेंट ऑफ डीपीडब्ल्यूडी ने एक यूडीआईडी का ये नई जो स्कीम लॉन्च की, और उसका ये पर्पस था कि इस पूरे कार्ड्स को एक सिंगल विंडो पर डिजिटाइज किया जाए और उसकी लीगलिटी और वैलिडिटी अक्रॉस द कंट्री, सब देश में सब एक जैसा बराबर हो वो। और अभी तक उस कार्ड में, हालांकि देखिए हमारी 10% पॉपुलेशन जो है, अगर हम 10 करोड़ की बात करें, लेकिन अगर हम डाटा बेस देखें, डीपीडब्ल्यूडी की डाटा बेस देखें यूडीआईडी में, तो करीब 1.25 करोड़ के आसपास उन्होंने अभी तक कार्ड इशू किया है। काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो इश्यूज आ रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर, एक जो ग्रासरूट लेवल की जो बेसिक इशू आती है यहाँ मेडिकल बोर्ड का कंस्टिट्यूशन के और उनके सर्टिफिकेशन का, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सेमी अर्बन और रूरल सेक्टर्स में, ये कहीं ना कहीं अभी भी डॉक्टर्स के बीच में अभी इसके बारे में प्रॉपर डॉक्टर्स को, पीएससी डॉक्टर्स को और जो डॉक्टर्स की टीम है उनको ओरिएंट करने की आवश्यकता है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की आवश्यकता है सर। ये क्योंकि वो जब तक कि वो वहां पर सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे, जो आरपीडी एक्ट में ये डिफाइन है, जो मेडिकल बोर्ड में कौन कौन होंगे और ये डिफाइन है किस कैटेगरीज के लिए, जब तक कि वो नहीं होगा तब तक वो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे यूडीआईडी पोर्टल पर, अगर आप डीएफटी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो। गवर्नमेंट का देखिए पर्पस बहुत क्लियर है, लेकिन सवाल है कि कहीं ना कहीं हम सभी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं ये। तो हम ये कहेंगे, मुझे भी लगता है, और जब मैंने इस फील्ड में काम किया, जैसे कि अभी भी, जैसे कि एज ए आरसीए में जब हमने विजुलाइज किया, जब हम ट्रेनिंग कॉलेज के लिए स्पेशल स्कूल में बच्चों की जब यूडीआईडी कार्ड की मांग करते थे, तो वहां पर कहीं ना कहीं संस्थाएं भी ये कहीं ना कहीं यहाँ पर 100% नहीं हो पाती थी, और खासकर पेरेंट्स को कहीं ना कहीं इश्यू होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो मेडिकल बोर्ड्स को फेस करने के लिए, और बोर्ड की मीटिंग तो रोज होती नहीं है, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का इशू है। हमारे ख्याल से ये इशू जो आप, मैं कहूँगा सर, ये अगर आप रिस्पेक्टिव जिस स्टेट में हैं, अगर आप वहाँ के स्टेट कमीशन फॉर पर्सन से विथ डिजेबिलिटीज को अगर आप अप्रोच करें, तो ये कहीं ना कहीं वो अपने राज्य में जितने मेडिकल बोर्ड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बोर्ड्स को एक नेसेसरी एडवाइजरी जारी कर सकते हैं, और खासकर बच्चों के लिए अच्छा रहेगा सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। अभी देखिए ना, रेलवे में ही जो आपको सर्टिफिकेट अगर बनाना है, दे डोंट एक्सेप्ट यूडीआईडी। यस यस सर, रेलवे के बारे में एक मिनट सर, मैं रेलवे के बारे में बताना चाहूंगा। ये अगर आप रेलवे की बात करें, अभी रिसेंटली मेरे पास में एक हमारे मित्र की बेटी है, उन्होंने रेलवे में जो आपके रेलवे के जो फॉर्म्स होते हैं, अभी भी आईडी बच्चों के लिए उन्होंने एक मति मंद करके इन्होंने एक कैटेगरी डाला हुआ है सर। अब देखिए, हमारी डिपार्टमेंट है, हमारी मिनिस्ट्री है, हम आपस में कन्वर्जेंस नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, अभी भी वो आरपीडी एक्ट के अलाइनमेंट में काम नहीं कर पा रहे हैं सर ये। तो रेलवे के बारे में तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे सर, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इक्वली वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। अगला एक सवाल है, ये तनुज है मीटिंग में? यस सर। हाँ तनुज, आपने जो ये मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस वाला सवाल है, आप पूछिए सुबोध जी से। गुड आफ्टरनून सर, मैं सर तनुज माथुर सर, मैं बीबीएस एमडी हूँ लखनऊ के जीएमसी से। और सर हम लोग देखते हैं इंश्योरेंस वगैरह हम लोग को मिलता नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, हालांकि गवर्नमेंट तो निकालती है कई बार कि ये कंपनी दे रही है, बट कोई इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को इस कैटेगरी के थ्रू हम लोग को इंश्योरेंस नहीं दे रही है आज भी। एंड सर, हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। एंड सर कहते हैं प्रोस्थेटिक्स वगैरह जैसे इंपोर्ट होते हैं तो उसमें ड्यूटी बहुत हाई लगती है, जैसे ऑटोबॉक वगैरह है या इंडोलाइट्स वगैरह है, तो उसकी कॉस्टिंग बहुत हाई हो जाती है सर। तो इट्स नॉट इजी, जो आप लोगों के कंबाइंड करके भी आया हुआ है, एक एलिम्को का कंबाइंड कॉम्बिनेशन में आया हुआ है, बट दैट इज आल्सो नॉट वेरी फाइन फॉर ईच एवरी पर्सन विद डिसेबिलिटी सर। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, जो कंसर्न आपने कहा, जो खासकर जो ये इंश्योरेंस के बारे में जो है वो बेनिफिट नहीं मिल पाती है, कहीं ना कहीं हमें लगता है जो ये चैप्टर जो है ना, ये आपके साथ ही नहीं, बहुत सारे जो पीडब्ल्यूडीज हैं कहीं कहीं ये फेस कर रहे हैं, और इसमें इंटरफेरेंस इनमें गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव मेजर करने की आवश्यकता है। खासकर स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी के जो लखनऊ में बैठते हैं, आप उनसे ही बात कर सकते हैं। एक बात और भी कहना चाहूंगा, जहां आपने एलिम्को की बात कही, मैं तो ये नहीं कहना चाहता हूँ क्वालिटी कंसर्न के बारे में। इंडोलाइट, ऑटोबॉक बहुत बड़ी एमएनसीज हैं, बाहर की कंपनी है, उनके प्रोडक्ट ऑफकोर्स बहुत बेहतर होते हैं।
हमारे जो देसी जो होते हैं एलिम्को के जो हैं। लेकिन अभी जैसे कि मैं जब मेंबर सेक्रेटरी था उसमें मुझे लगा, मुझे जानकारी है एलिम्को ने भी एमओयू साइन किया है ये एमएनसी के साथ में, और इस प्रकार के ऑटोबॉक या जो कंपनीज हैं जिससे अपने आर्टिफिशियल एड्स एंड अप्लायंसेस को, डिवाइसेस को अपग्रेड कर सके, उसकी क्वालिटी इंश्योर कर सके। लेकिन फिर भी चूंकि एलिम्को सरकारी एजेंसी है, फ्री ऑफ कॉस्ट में या सब्सिडीज में काम करती है और ये आर्टिफिशियल लिम्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है कैंप के थ्रू, तो कहीं ना कहीं उनके अपने कॉस्ट कटिंग की बात करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये डिपेंड करता है लोगों पर, जो अगर आप कैपेबल हैं, आप तो ऑटोबॉक से बाकी जैसे जितने भी ऑर्थोटिक्स हैं इनको आप ही प्रिक्योर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा अपनी क्वेरीज को रशियन कमिश्नर डिप्टी के साथ में करेंगे, क्योंकि वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आप लोगों के साथ में है, आरपीडी एक्ट, और कमिश्नर साहब बैठे हैं, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। थैंक यू सर। सुबोध जी, आई थिंक ये सवाल तो बहुत सारे हैं, पर अच्छे सवाल हैं। आई थिंक एक जो ग्रास रूट दिक्कतें हैं, और राखी ये जो इंश्योरेंस वाला स्पेसिफिकली है उसका आप एक अलग वीडियो बना के ग्रुप पे डालना, ताकि ये सबको पता चले। जी जी बिल्कुल। कुंदन है। अब मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपने सवाल चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं एक एक करके आऊंगा। ठीक है, कुंदन है? जी सर। सर हाँ मैं कुंदन है। इंटर्न हाँ डॉक्टर हूँ, मैं जेएमसीएच बेतिया बिहार से। सर मुझे एमबीबीएस के टाइम भी ना बहुत परेशान किया गया कि आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ से बनाना पड़ेगा, वहाँ से बनाना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी पीएससी का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था और मैंने सदर हॉस्पिटल से बना चुका था पहले भी। उसके बावजूद मुझे अदर स्टेट भेजा गया था बनाने के लिए। फिर मैं पीजी में भी एडमिशन लेना चाहता हूँ, उसके लिए भी सर मेरे पास यूडीआईडी कार्ड है, सदर हॉस्पिटल का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, फिर मेरी पीएससी का है। फिर मैं बाहर क्यों जाऊँ बनवाने के? सर ये तो परेशान कर रहे हैं ये लोग कि एकदम इतना रहने के बाद भी आप बाहर से एक स्पेसिफिक सेंटर चूज कर देते हैं, 10 सेंटर आप यहाँ से बनवा कर लो, फिर आपको ये एडमिशन मिलेगा मेडिकल कॉलेज में पीजी के लिए या फिर यूजी के लिए, सर किसी भी चीज के लिए। आई थिंक आलोक सर, मैं जवाब दूं इनके बारे में? आप सर, आई थिंक कुंदन को एडवाइस चाहिए, तो हाँ, आप। हाँ। मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये इशू भी हमारे ख्याल से इनका भी ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो इनको ये इश्यूज आ रही हैं। लेकिन हम ये कहेंगे, अगर आपके पास में यूटीआईडी कार्ड है तो आप जब एक एडवाइस देना चाहूँगा, आप स्टेट कमिश्नर डिप्टी को जो भी कोई गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी इस प्रकार की बातें कहें, तो आप उनको ये बोले, आप राइटिंग में हमें लिख करके दे दो। आप नंबर 1, not go for any kind of verbal communication, verbal discussion. बोले ओके सर, थैंक यू, जस्ट गिव मी इन राइटिंग सो दैट आई कैन अप्रोच टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। उसके बाद आप उनकी राइटिंग में लेने के बाद में जब आप स्टेट कमिश्नर्स को आप रिक्वेस्ट करें और कॉपी मार्क करें सीसीपीडी को, हमें नहीं लगता है कोई राइटिंग में इस प्रकार के चीज लिख करके आपको देगा। कहीं ना कहीं वो इस प्रकार की मेंटलिटी बन गई है। जो माइंडसेट की बात कही है हमने ना सर, जो माइंडसेट को हमें बदलना होगा, और इसके लिए हमें अप्रोप्रिएट कैपेसिटी बिल्डिंग की, और हमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको कहीं ना कहीं, एक्टिविस्ट हैं, इनको कहीं ना कहीं आगे आना होगा सर। अंडरस्टूड। गिरिनाथ, ये डॉक्टर जफर इकबाल ने एब्सोल्युटली सर माइंडसेट करके बोला है। आई थिंक आपने जो माइंडसेट की बात करी थी वो काफी रेलेवेंट है। उसके बाद ये गिरिनाथ है। उन्होंने गिरिनाथ, आप हैं? हाँ जी, नमस्ते, मैं हूँ यहाँ पे। तो बोलिए। हाँ, नमस्ते सुबोध सर जी। तो नमस्कार मेरा गिरिनाथ। प्रश्न ये था कि मैं, हाँ, तो सर मैं अबोनी एम्पूटी हूँ, मतलब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, एक कॉलेज है निफ्ट उसमें। तो अभी मैं 16 साल हो गया है, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ही हूँ। तो वो क्या है कि मतलब प्रमोशन का जो एस्पेक्ट मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी हुआ नहीं है। जो मेरे साथ जॉइन किए थे वो हो चुके हैं, तो इसमें क्या, इज देयर एनी राइट व्हिच आई कैन आस्क? मे बी लाइक खाली मेरा नहीं है, काफी लोगों का प्रमोशन रुका है, तो मे बी इट्स नॉट बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी, बट एज सच इट डिस्ट्रेसेस अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। थोड़ा हमें, मे बी वी आर सेंसिटिव और व्हाटएवर, तो हमें थोड़ा सा उससे ज्यादा दुख पहुंचता है शायद। पर वो पॉइंट वो समझेंगे, या ऐसा हो सकता है कि मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा पूछा नहीं है प्रमोशन सर, एज सच, बट मैं ना हाँ जी। गिरिनाथ का सवाल एक दूसरे तरीके से पूछता हूँ
हाँ कि बोलिए ना। अगर अगर ऐसे ग्रोथ में डिस्क्रिमिनेशन हो, ठीक है, गेरीनाथ का केस तो मतलब मेरे को नहीं पता है, पर एक जनरली पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसे ग्रोथ में डिस्क्रिमिनेशन हो तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के पास क्या राइट है, क्या करना चाहिए, उसमें कुछ अगर आप सुझाव दें तो अच्छा रहेगा। सर एक्चुअली इसमें क्या है, जैसे कि मैं समझ रहा हूँ जो एम्प्लॉयमेंट में और कैरियर प्रोग्रेशन में जहाँ पे जॉब ये कर रहे हैं, जहाँ तक इनकी बात समझ रहा हूँ, हर एक डिपार्टमेंट की अपनी एक आरआर होती है, रिक्रूटमेंट रूल्स होती है, और उसमें ये डिफाइन क्या होता है उनके कैरियर प्रोग्रेशन के बारे में। अब यह गिरनाथ जी बेसिकली ये तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है या टीचिंग जॉब में है, इनके पास ये डिफाइन आरआर होगा, और खासकर ये इधर यूजीसी के मैंडेट को भी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से यूजीसी के मैंडेट को ही फॉलो करते होंगे। इसमें उनका जो कैरियर प्रोग्रेशन के बारे में दी गई है, कितने सालों के बाद एक असिस्टेंट प्रोफेसर कितने सालों के बाद में एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं और उसके बाद प्रोफेसर बनते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी कितनी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं और उनके कितने गाइड और कितने बुक्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं पब्लिकेशन से, ये सब चीज़ें उनके गाइडलाइन में लिखी गई है। अब ये मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक बात है, अगर इस प्रकार की गाइडलाइन बनी हुई है तो मैं कहूँगा गाइडलाइन की कॉपी इनके पास होगी, ये मांग सकते हैं अपनी क्वारीज को, और डीओपीटी गाइडलाइन भी इसको, डीओपीटी भी इसके बारे में गाइडलाइन, जो गवर्नमेंट की बॉडी है वो भी निकालती है इस प्रकार के। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इनकी क्वारीज को फुलफिल नहीं की जाती है, देखिए हम तो मांग सकते हैं, इनके पास इंस्ट्रूमेंट है, आरपीटी एक्ट में अपने लीगल राइट्स के बारे में डिमांड कर सकते हैं, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है, प्रमोशन की बात कही गई है, और प्रमोशन में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये हो सकता हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अपनी उनकी अपनी कंडीशन अलग हो, जो ये प्रमोशंस के बारे में या इस प्रकार की चीज़ों को कहीं ना कहीं उनको अवॉइड करते हो। बहुत सारी ऐसे ऑटोनोमस बॉडीज में इस प्रकार की बातें होती हैं जो उनके आरआर अलग अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूजीसी के मैंडेट को भी फॉलो करना पड़ता है। ये अगर इसके बावजूद भी काम नहीं होता तो मैं ये कहूँगा, जो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं एडवाइस ही कर सकता हूँ, जो स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, ये इनके बड़े वहाँ पर प्रोटेक्टर हैं, जो गार्जियन की तरह हैं, उनसे भी वो उनको लिख सकते हैं और कॉपी मार्क कर सकते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को, सीसीपीडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होगा, कहीं ना कहीं अगर अगर रोकी गई, जानबूझकर रोकी गई है, तो ही विल गेट जस्टिस। थैंक यू। अंडरस्टूड। तो ओके सर, सुबोध थैंक जी, यू। अगर अगर मैं इसको एक वाइडर ऑडियंस के लिए बोलूं कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करी गई है और वो हक है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या रूल्स हैं आप उसके अगेंस्ट देखिए, और फिर उसमें अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो उसके लिए क्या करना चाहिए सुबोध जी। मान लीजिए कि मैं एक केस बनाता हूं कि भी रूल देखा और सारे जो उसके जो प्रोविजंस हैं या जो भी कंडीशंस हैं वो पूरी हुई हैं, और बायस एक चीज है जो एग्जिस्ट करती है, सबको पता है सर, राइट, कोई मुंह पे नहीं बोलता है पर एक मन में, अब किसी के मन में क्या चल रहा है वो नहीं जान सकते। पर पर अगर एक ये राइट की बात करनी है तो अगर कोई इस स्थिति में है तो उसको क्या करना चाहिए। देखिए मैंने तो कहा, जो आपने एक बात कही, जो मतलब कि वो नहीं करने की बात है, अगर माइंडसेट है और कोई इंटेंशन है, वो अलग इशू है, और इस तरह की बातें होती हैं। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हमने ये डिस्क्रिमिनेशन देखा है, ये डिस्क्रिमिनेशन देखा है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन थी, जो एक रेगुलर सर्विस में आने के बाद कई साल, करीब 25 साल काम करने के बाद वो पीडब्ल्यूडी हो जाते हैं, और उनको लीगल राइट्स होते हैं उनके पास में। वो अल्टीमेटली अपने राइट्स के लिए, उनको सबसे बड़ी बात है, ये बात दिमाग में आई, जो ये ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने उनको ये कहा, जो आप अब यू आर नॉट फिट फॉर टीचिंग जॉब because you are having some deformity, physical deformity with regard to the movement. So therefore, you give your resignation, stay, and we will issue, means you go for the VRS kind of thing. This happens in the government organizations, or ultimately once he came to me, he is also known to me. So I advised him, please go to the court. Now actually it is the intention, and this is the body under the same ministry.
It is, very ironically, it is being done. So I have asked him, please go, I have advised, please go and consult the lawyer. They went to the court, and finally, after 4 years, the verdict came in favor of him, and he has got all the financial benefits and reinstated for the, and right now last year he has got a retirement after the completion of the superannuation. So what I am saying to, sometimes ये लगता है जो हमें हमें इनजस्टिस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इट मीन्स और दे नहीं रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक ही एम है, एक ही इंस्ट्रूमेंट है, हमें लीगल कंसल्टेंट, लीगल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर जी। अंडरस्टूड। राजेश हैं? जी सर। हाँ राजेश, आप अपना सवाल पूछिए। सर इज एम ऑडिबल सर? मेरी बात आप पहुंच गई सर? सर मैं गवर्नमेंट, सर थैंक यू सर। सर मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ। मेरे साथ क्या है कि सर मेरा थोड़ा प्रमोशन इशू था सर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कंपनी है वो RTDW एक्ट को बाईपास कर रही है। दे आर सेइंग कि वी आर बाउंड टू बी जस्ट फॉलो द दैट रूल्स ऑफ DOPT. That one rule has been issued in 17th May 2025. So they are just saying that we are bound to be just the fulfill and the enactment and what the that OM says to be we will follow that. Secondly, sir, I'll just go to that CCPDP. They had recommended that you have got a promotion. आपका प्रमोशन बनता है, आपको हम रिकमेंड कर रहे हैं. Still that government organization is not fulfilling and they are not accepting my promotion, sir. So what should I do, sir? I'm just going for a quote, sir. But मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा RPWD एक्ट क्या इतना छोटा हो गया है और ये हमारे CCPD कमिश्नर इतने वो हो गए कि वो किसी को मतलब बाउंड नहीं कर पा रहे हैं सर. जैसे SC/ST कमीशन होते हैं सर, वो सीधा उनको संबंध कर देते हैं कि आप आइए, आप ऐसे कैसे नहीं करेंगे. तो सर हमें भी कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि हमें भी एक ऐसे अपने CCPD ऑफिसर्स को ऐसा एक राइट देना चाहिए कि भाई आप अपने जुरिडिक्शन में काम करिए, वो उनको बताएं कि सर आप RPWD एक्ट को फॉलो कीजिए. ये बहुत ही मतलब अच्छा है और बहुत यूजफुल है सर. सर प्लीज थोड़ा सा इस पे गाइड कीजिए सर. सर एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा, एग्जैक्ट सेम बातें आपने की हैं जो अभी प्रीवियस हमारे ऑडियंस ने कहा. ये देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंशन की बात हमने कही. एट ए टाइम 2 रूल को फॉलो नहीं करेंगे, वो डबल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर सकते हैं. इंटेंशन क्लियर नहीं है उनका, इसलिए वो DOPT रूल को वहां पर कोट कर रहे हैं. आपने इसके अगेंस्ट में CCPD ऑफिस गए, बिल्कुल सही किया आपने. लेकिन यहाँ पर कभी कभी ये भी पाया जाता, जैसे कभी मैंने एग्जाम्पल साइट किया था, जो हमारे एक फ्रेंड के साथ में, वो भी गवर्नमेंट में थे और ड्यूरिंग द सर्विस ही गॉट डिसेबिलिटी. उसके बाद क्या हुआ, देन ही वेंट टू, और उस केस में भी उन्होंने भी CCPD ऑफिस से डायरेक्शन लिया. डिस्पाइट ऑफ दैट दे हैव नॉट कंप्लाइड द डायरेक्शन ऑफ द CCPD. देन ही वेंट टू द कोर्ट. आपने ये कहा ना ST/SC कमीशन के बारे में कहा, वो कमीशन है. कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस देती है, वो उनको चैलेंज नहीं कर सकते आप. ये CCPD ऑफिस के पास में वो सब जुडिशरी पावर है सर. ये 100% जुडिशरी पावर नहीं है. ये एडवाइस करते हैं, नहीं है तो अल्टीमेटली हमें कोर्ट में जाना पड़ता है सर. यही फर्क है CCPD में और कमीशन में सर. थैंक यू. शिव शंकर आप हैं? हेलो सर, गुड मॉर्निंग. हाँ बोलिए प्लीज. Yes, sir. Sir, can I take 2 to 3 minutes, sir, to explain my issues? थोड़ा संक्षेप में करेंगे तो अच्छा रहेगा, पर प्लीज गो अहेड. Yes, sir. Actually, as I mentioned in the chat, I faced 2 challenges, sir. So actually, I'm a locomotor disability. So I was in pistol 10-meter shooting, sir. So in para, if you want to continue in para sports, we have to get classification for all the sports. But I went to Delhi to get classification. He's the only one doctor, he has to give classification. But he rejected my classification. He said, so I'm not eligible for the shooting sports. But I said, that means I'm not disabled. He said, you are disabled, but not qualified
you are not eligible to play shooting. I didn't understand what is this, and he didn't explain the what are the criteria and conditions. He said, go and read the rule. I came back to, I am from Karnataka. I came back to Karnataka. I connected to 2-3 people, but they are also not able to help. And already people are there in the Indian team. They have same like me only, disability. But I don't know, sir, how people considering some disabilities are invisible. But people are thinking like if you are looking like disabled, then disability is visible. So just one second. Rakhi, can you meet everybody except for Shiv Shankar? Go ahead. Yeah. So our society is like that. Rakhi, can you please mute everybody? Can I continue, sir? Yes, please. Sir, in our society, what people are thinking, so if you are disabled, you should like look like disability. Our disability should visible. Then only they'll consider we are disabled people. So as I said, I'm a locomotor disabled. I have left side hemiplegia problem. I think Subodhji has been Sir is muted. in mute. Subodhji, you'll have to just unmute yourself, please. Okay, now it is okay, sir. Yes, I'm sir. audible. Yes, What I'm yes, saying, yes. जो इनकी जो बातें हैं, इनकी जो ग्रीवेंसेस है, बिल्कुल जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैंने कहा ना, माइंडसेट, डॉक्टर्स की माइंडसेट को भी देखना होगा. ये चीजें जो है कहीं पर, ये अगर ये एक क्लासिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, जो एज ए पैरा ओलंपिक में ही इज अ हेमिप्लेजिक और पैराप्लेजिक पर्सन, और ये ओलंपिक में भाग लेना चाहते हैं, इनके लिए गवर्नमेंट ने अलग से एक प्रोविजन किया हुआ है, जिसके लिए स्पेशल ओलंपिक भारत हैं, इस प्रकार के जो पीडब्ल्यूडी को प्रमोट करती है इस प्रकार के ओलंपिक और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में. तो मैं कहूँगा जो कहीं ना कहीं ये अगर एक डॉक्टर से नहीं हो रहा है, तो कहीं दूसरे डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स उनके साथ में हम कंसल्ट क्यों नहीं करते हैं. जैसे कि आप कर्नाटका के हैं, व्हाई डोंट यू गो टू द कर्नाटका में जो डॉक्टर्स हैं, जहाँ पे जो आपकी तरह जो हैं, उनके साथ बात करें. और अगर ये नहीं होता है तो देन यू अप्रोच टू द सीसीपीडी ऑफिस और स्टेट कमिश्नर ऑफिस से. ये चीज कहीं पर हम तो ये इज ए पॉलिसी मैटर, इसमें डायरेक्टली इंटरफेरेंस तो नहीं हो सकता, लेकिन एडवाइस ही कर सकते हैं सर, हम यहाँ पर ये रास्ता अपना सकते हैं. और जब ये शूटिंग में, ये पहली बात है, अगर वो राइटिंग में, जैसे कि मैंने एक पहले भी कहा था सर, जो वर्बल कुछ चीजें जो होती हैं सर, वर्बल कुछ चीजें होती हैं कम्युनिकेशन में, राइटिंग में. और इस तरह की बात मैं कहूँगा, जिस डॉक्टर के पास आप गए हैं, जिस बोर्ड के पास गए हैं, और वो राइटिंग में लिख के दे दे, तो आपके लिए बेहतर होगा चीज को आगे अच्छी तरीके से टेकल करना. Thank I you, asked sir. the letter, but he didn't give, sir, that time. So he said it's not possible. I know, sir. Actually, वो देंगे नहीं लिख करके. That I am very much aware. Yeah. And one more thing, sir. He will be accountable. Yeah. The moment he will be accountable. So better आप उनको राइटिंग में लिख कर दे, आप स्पीड पोस्ट से भेजें, ईमेल भेजें, अपनी बातें कहें, और उनके बाद रिमाइंडर भेजें, और ये कहीं ना कहीं वो जवाब जरूर देंगे सर आपकी. Okay, sir. And one more thing, sir, request. So if any helpline opens from like national level, that will help, sir, for all PWDs, whatever queries and problems they have. If we call to that helpline, that should be like answerable, sir. Because for car purchase also, there is some government scheme, sir, for PWD car purchase. But for that also, people are denying here. They are not accepting to buy car. So we should do modification. In Karnataka, only one guy has that modification authority. So he's seeking money from people. So you are getting this much benefit from government. So you give me this much amount. So if you are getting 1 lakh benefit, you should give me 50,000. Then only I'll give certificate. So there are many challenges. At least if any helplines. Ultimately, sir. हाँ सर, प्लीज. हेलो सर, बोलिए आप, प्लीज.
ये चंदन, आपको इस पे लीगल रिकोर्स लेना चाहिए। यू शुड डेफिनेटली राइट अगर इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये तो सरासर मतलब Injustice, फॉर लैक injustice. ऑफ बेटर वर्ड, ये मतलब ये तो And चोरी है ना। तो इसमें मतलब आपको लीगल रिकोर्स लेना चाहिए इसमें। आप मतलब लिखिए DPWD कमिश्नर, FIR, एवरीथिंग, राइट? I don't know what to say, and I don't know what Subodhji can say on this. But Subodhji, please add if no, I you know. think Sir, voice is not coming. Sir, voice is not coming. okay. Raki? Now, what I'm saying, Yeah. I am fully agree with that Alok ji. Whatever actually he has said, that you should go for the legal action and you go for the consultancy also. I don't think such we cannot help such kind of we cannot stop such kind of nonsense and unethical practices going on there. But once the government has given some concessions and rebates discount to you, so you should be get fully fully advantage. It should be given to you. I think you should go for the you give in writing to the state commissioner in case he won't listen, then go for the legal action. I think he's right. ये एक नंबर है। so Chandan has just given you a suggestion in the chat box to report it to the district commissioner. एक ये नाम नहीं है 9906584280। बहुत टाइम से हाथ रेज्ड है। अगर आप अपना सवाल पूछेंगे तो, क्योंकि हमारा पास आई थिंक और 4-5 मिनट हैं पॉडकास्ट खत्म करने के लिए। और हाँ, प्लीज गो अहेड। You'll have to unmute yourself. Okay. Chandan, you had another question somewhere. I have one more question, Subodh sir से. Sir, non-executive promotion जो है in government sector is covered under आपका रोस्टर में कवर हो जाता है. गवर्नमेंट हैज टू वो उनको कोटा अलॉट करना पड़ता है. एग्जीक्यूटिव का as far as I have read some Supreme Court guidelines, executives का I don't think there is a roster. Am I wrong on this? वहां पे रिजर्वेशन लागू नहीं होता है. Am I wrong on this? I don't think, sir, the roster is not being followed or roster is not applicable for the executive kind of post, sir. Okay, that is quite it is quite applicable for the as per the RPT Act, sir, actually. Executive, non-executive कैडर दोनों के लिए है सर. It is there for it must be there for all. If you talk about the क्लास DOPT category क्लास also, जो ऑफिसर्स डिसाइन करते हैं क्लास 3-4 के लिए तो है. दैट आई एम वेरी श्योर बिकॉज़ हम लोग भी रोस्टर बनाते हैं तो क्लास 3-4 के लिए बनाते हैं उस तरह से. सर एक बार मैं भी एक बार देखना चाहूंगा सर एक्चुअली DOPT गाइडलाइन क्या कहती है, लेकिन हमारे ख्याल से सर इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल क्लासेस सर. थैंक यू सर. थैंक यू. प्रशांत, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ लीजिए. ओके, प्रशांत नहीं है. आई थिंक और कौन एक लास्ट क्वेश्चन एनीबडी वांट्स टू? राजेश. Sir, thank you very much, sir, for giving me a chance, sir. Thanks a lot. Sir, it is a great platform, sir. मेरे लिए पहली बार ऐसा है कि मैं सर इतने बड़े मंच पर अपनी बात रख रहा हूँ, सर. सर, मेरी बात उस समय पूरी नहीं हो पाई थी, थोड़ा नेटवर्क इशू था, सर. सर, DOPT का जो एक OM जो 17/5/2025 में इशू हुआ था, सर, उसके अंदर ना एक रिस्पेक्टिवली वर्ड उन्होंने डाल दिया, सर. रिस्पेक्टिवली एक सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है सर, जिसके अंदर ABCD कैटेगरीज में उन्होंने सेग्रीगेट किया कि पहले A वाले को दिया जाएगा, फिर B वाली कैटेगरी को दिया जाएगा, फिर C वाली कैटेगरी को दिया जाएगा. तो सर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सर थोड़ा अगर कुछ इस पे हो पाए कि दे इटसेल्फ नॉट अंडरस्टेबल कि भाई जो रिस्पेक्टिवली वर्ड उन्होंने किस हिसाब से डाल दिया कि पहले ए कैटेगरी में ब्लाइंड एंड लो विजन है प्रमोशन के केस में सर, बी कैटेगरी में डम एंड डीफ है, सी कैटेगरी में लोकोमोटर्स है, फिर रेस्ट आर कवर्ड इन अदर्स सर.
So, sir, can we just request them? I have requested so many times, but they are not giving response to me. तो सर कुछ ऐसा थोड़ा मैकेनिज्म बताइए कि सर आप जो डीओपीटी ऑर्डर इशू करता है तो उसको एटलीस्ट ये डिसेबिलिटी कमीशन या फिर सब सर से थोड़ा सा मतलब बात करके देखिए कि भाई आप ऐसा अगर दे देते हैं गवर्नमेंट तो वो डीओपीटी को फॉलो करती है कि सीसीपीटी को कुछ अलाउ नहीं करती है। तो सर हम कुछ ऐसा आप मेरे को थोड़ा गाइड कीजिए सर कि कैसे हम इस चीज को उनके नॉलेज में डालें सर। थैंक यू सर। हमें जैसा लगता है जो आप बता रहे हैं अभी भी कहीं न कहीं अवेयरनेस की कमी है और खासकर कन्वर्जेंस और कोऑर्डिनेशन की कमी है दो डिपार्टमेंट के बीच में, डीपीडब्ल्यूडी और डीओपीटी के साथ में। जैसे कि आपने कहा ABCD, अब देखिए अभी भी वो डेफ एंड डम वर्ड यूज कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। डेफ एंड डम टर्मिनोलॉजी तो है ही नहीं, ये तो एब्सोल्यूट हो गया, आरपीडी एक्ट में है ही नहीं ये टर्मिनोलॉजी, फिर यूज कैसे कर रहे हैं? इट मींस दे आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द आरपीडी एक्ट। ये कहीं ना कहीं कमी है, ये गैप है सर। इस गैप को दूर करने के लिए आपस में डिपार्टमेंट को, डीपीडब्ल्यूडी को, सीसीपीडी को, खासकर सीसीपीडी को लिखना होगा डीओपीटी को सर। ये कहीं ना कहीं हो सकता है रिस्पेक्टली वर्ड जो यूज किया गया है वो इसका मीनिंग क्या है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, किस पर्पज से दिया गया है, वो वो एक्सप्लेनेशन सीसीपीडी को ही दे सकते हैं। और ये होगा अगर आपस में बैठकर वो इस चीज को देखे तभी हो सकता है। तो हमें लगता है जो अभी भी डीओपीटी को कहीं ना कहीं अपने वो जो उनकी स्टैंडर्ड जो प्रोविजंस हैं, जो एसओपी है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन अभी हो सकता हो ये पीओडी एक्ट 1995 की प्रोविजंस को फॉलो कर रहे हो। आरपीडी एक्ट 2016 में डेफ एंड डम टर्मिनोलॉजी तो है ही नहीं। आई डोंट थिंक मतलब कि डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग का डम वर्ड तो ये टर्मिनोलॉजी यूज ही नहीं किए जा रहे हैं, ये तो कब से डिस्कार्डेड हो चुके हैं। एब्सोल्यूट है सर, इट इज अनएथिकल टू यूज सच काइंड ऑफ वर्ड। तो आप हमें कहेंगे आप अपनी ग्रीवेंसेस को अगर आप सीसीपीडी को लिखें, और एक बात और मैं कहा, जब भी आप चिट्ठी लिखे कॉपी आप सेक्रेटरी डीपीडब्ल्यूडी को अवश्य मार्क करें, क्योंकि ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, so he can also help you sir. He should be also kept in line so that actually so that he can help you sir. थैंक यू सर। वो सेक्रेटरी डीओपीटी को लिखने के लिए आपने बोला है सर, डीओपीटी सेक्रेटरी? नो सेक्रेटरी आप सीसीपीडी को लिखें, कॉपी मार्क करें सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को। ओके, उनको ये अपनी ग्रीवेंसेस लिखें। अभी भी ये डेफ एंड डब्यूज कर रहे हैं, ये जो हमारे ग्रीवेंसेस हैं, काइंडली इंटरवीन इन दिस मैटर। और आप फिर कॉपी आप मार्क करें उनको, आप इधर या तो डीओपीटी को लिखें और कॉपी मार्क करें सीसीपीडी को और सेक्रेटरी डीपीडब्ल्यूडी को। इस कंडीशन में जो दो दे विल टेक द प्रो एक्शन सर। थैंक यू सर। थैंक यू सुबोध जी। सर इतने सवाल किसी पॉडकास्ट में नहीं आए हमारे। सर मैं ये बताना चाहूँगा जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो खासकर जो हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, मेरा तो ये सेक्टर ही, मैंने इसी में ही अपना जीवन दिया सर। 30 अगर 1988 की बात करें और अभी 2023 तक, कंप्लीट 23 तक तो हमने इसी फील्ड में काम किया है। मीन्स अगर देखा जाए तो 35-36 साल इस सेक्टर में ही जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी, तो हम तो इनके बीच ही रहे हैं सर, इन बच्चों के साथ रहे हैं। ये तो मैं तो कह रहा हूँ दे आर जस्ट लाइक ए गॉड। मैं तो आईडी बच्चों के साथ 8 साल काम किया ट्रेनिंग लेने के बाद सर। मुझे वहाँ पे उनके साथ काम करने में इतना मजा आता था, और जब मैं मौका मिला रेगुलेटरी बॉडी में काम करने का और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, स्टेक होल्डर के साथ में बहुत मौका मिला सर। तो अपनी ये एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूँ सर, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ में बात करके। मुझे लगता है वो तो हमारे अपने ही हैं, और सबसे बड़ी बात हम ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए ही काम किया है सर। ये अभी भी लगता है उनकी ग्रीवेंसेस को हैंडल करने में हम कुछ कर सकते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी सर। मैं तो बस सिर्फ आपके लिए मतलब ताली बजाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। I think you've been exceptionally kind and generous with your time. आपने आई थिंक जिस पेशेंस के साथ सारे सवालों का जवाब दिया है वो मतलब एक फ्रेज है ना सर, हैट्स ऑफ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।
right? And I think we will end this right now. If I think if everybody can just give a clap or thumbs up to Subodhji, I think this is outstanding. Uh, I think it's I think the way questions have been answered are amazing, right? And looks like Subodhji will have to call you once again, because I don't think all questions have I been will be happy to be answered. part again, sir. Right. And Alok sir. we're ending. My request is you can send your questions. I'm in touch with Subodhji. I will help answer your question. Okay. I have put in my email ID in the chat box. Okay. The marching sheep ID. If your CV is not or resume is not with us, please send it. We will keep it in our database and we will get in touch with you when the right kind of opportunity comes in. If you are not in our uh, you know our WhatsApp group, uh, just send an email. We'll send you the link for the WhatsApp group. Okay. And in case you have any other questions, you know uh, just send it on that email ID. And when I speak and meet Subodhji, I will get those answers and I will send them back to you. With that, we will end this discussion. We are 7 minutes over the allotted time, but thank you so much, Subodhji. An absolute pleasure. सो थैंक यू वेरी मच आलोक जी. मैं ये कहूँगा जो हमारे ऑडियंस थे उनको ये जरूर कहे जो मतलब अपने ग्रीवेंसेस को भी ये सुगम्य भारत ऐप एक लॉन्च की गई है हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा, डीपीडब्ल्यू द्वारा, वहाँ भी एक इसमें अपने ग्रीवेंसेस को डालें. वो भी कहीं ना कहीं मॉनिटर की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी के द्वारा. ये बहुत बड़ी चीज़ है. ये एक बात मैं कहना चाहूँगा जो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ इंटरेक्शन करने कि आज के दिन में. और ये बिल्कुल ये जेन्युइन सवाल थे, लाइव इंटरेक्शन था. और साथ में आपको आलोक जी, आपकी पूरी टीम को, और ये जो खासकर जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेशन कर रही हैं, मैंने इनके साथ भी काम किया है. इन्हें भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि ये मैंडेट बन गई थी पहले. जो ये खासकर ये ISL जितने भी हैं, ISL जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो मतलब कि ट्रेनिज होते हैं, इनको हम लोगों ने ये भी काफ़ी प्रमोट किया है और हमें बहुत खुशी है. मार्चिंग शिप कंपनी आपकी इस तरह के इंटरेक्शंस में और पॉडकास्ट में या इंटरेक्शन जो आपकी जो करते हैं, ये इंटरेक्टिव सेशंस हैं, इसमें आप साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को प्रमोट करते हैं. और ख़ासकर जो हमारे जो हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा होता है. So I think it must be continued and thank you very much आपको, आपकी पूरी टीम को, और साथ में हमारे सारे ऑडियंस को. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू एवरीवन and happy Janmashtami to everyone. Thank you very much. Thank you, Subodhji.